غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ، اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ طارق بن زیاد، جولین اور اوپاس نے موسیٰ بن نصیر کو تفصیل سے سنایا تھا کہ مرینا نے راڈرک کی فوج کو کس طرح شکست دلائی تھی۔ اب وہ مرینا اس کے سامنے کھڑی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ خاتون، موسیٰ نے مرینا سے کہا، ہمارے لیے تم قابل قدر ہو، ہم اس کا صلہ دیں گے۔ اوپاس نے مرینا کو اپنی زبان میں بتایا کہ امیر نے کیا کہا ہے۔ تمام باتیں اوپاس کی معرفت ہوئیں۔ مرینا کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ کچھ سن ہی نہ رہی ہو۔ اس کی نظریں موسیٰ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ اپنے امیر سے کہو اپنے وطن واپس نہ جائے، مرینا نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ یہ سفر ان کے لیے ٹھیک نہیں، اگر میں چلا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے بہت برا ہوگا، مرینا نے کہا، ذلت و رسوائی ہوگی، شاید کچھ اور بھی ہو جائے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور اس کی آواز میں گھبراہٹ آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، نہ جائیں امیر، نہ جائیں، انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ ان آنکھوں کو پھر کبھی اندلس دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ موسیٰ یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ مسلمان اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں خاتون، موسیٰ نے کہا۔ اللہ کے کاموں کے متعلق کوئی انسان پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلمان کسی انسان کی پیش گوئی کو سائے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے گا تو شرک کا گنہگار ہوگا۔ میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہی، مرینا نے کہا۔ میں شاید اپنے مذہب کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ مجھے کس طرح پتا چلا ہے کہ آپ کے اس سفر کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے اشارے سے مل رہے ہیں، مجھے آپ کے ارد گرد موت گھومتی پھرتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا تم نے کسی استاد سے یہ علم حاصل کیا ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نہیں، مرینا نے جواب دیا، میرے اندر سے، میرے اپنے ہی وجود سے ایک روشنی پھوٹتی ہے۔ میں آپ کو گنہگار نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بتا دیتی ہوں کہ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں، کہاں تھی اور کس دنیا میں جا پہنچی ہوں۔ اوپاس مجھے سب کچھ بتا چکا ہے، موسیٰ نے کہا۔ تم پر جو ظلم ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں، اس سے آگے بتاؤ تم کہاں پہنچ گئی ہو۔ دنیا کے ایک تاریک گوشے میں میرا بسیرا ہے، مرینا نے کہا۔ میں مظلوم تو نہیں ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتی ہوں۔ میں راڈرک کی داشتہ بنی رہی۔ میں نے راڈرک کو اپنی مٹھی میں لینے کے لیے عیاریاں کی، فریب کاری کرتی رہی اور اپنے فائدے کے لیے جس کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت پڑی اسے دھوکہ دیا، اور اسی ریاکاری میں میری جوانی گزر گئی۔ پھر میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، یہ میری قوم کا ساحر تھا۔ اگر میں اسے قتل نہ کرتی تو ایک بے گناہ لڑکی اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ وہ راڈرک کی فتح کے لیے اس لڑکی کی جان کی قربانی دینا چاہتا تھا۔ یہ میں سن چکا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ یہ ہم پر بہت بڑا احسان تھا، میں تمہیں اس کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ نہیں میرے بزرگ، مرینا نے کہا، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ احسان کیا ہے تو اپنے آپ پر کیا ہے۔ میں نے راڈرک سے انتقام لینا تھا، لے لیا۔ اب میرے دل میں کسی صلے یا انعام کا لالچ نہیں۔ میں اپنی روح کو گناہوں سے پاک کر رہی ہوں۔ اب تو سارے اندلس کی بادشاہی میرے قدموں میں رکھ دو، تو بھی میں اس گوشے سے نہیں نکلوں گی جس میں میں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ میری روح پاک ہو گئی ہے۔ میں جہاں رہتی ہوں وہاں اب عالم ارواح کی روحیں بھی آتی ہیں، شاید وہ مجھے آنے والے وقت کی خبریں سناتی ہیں۔ موسیٰ بن نصیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی زبان میں اپنے سالاروں سے کہا کہ اس عورت کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، اور میں آپ کو ایک اور خطرے سے آگاہ کر دیتی ہوں۔ مرینا نے کہا، مجھ پر مہربان نہ ہو جانا، یہ نہ سوچنا کہ مجھے اس قدیم عبادت گاہ سے اٹھا کر اپنے محل میں لے آئیں گے اور مجھے عیش و آرام میں رکھیں گے۔ اوپاس نے مجھ سے محبت کی تھی تو اس کے خاندان کی بادشاہی حق و خون میں ڈوب گئی، اور اس کا بھائی جو بادشاہ تھا قتل ہو گیا۔ راڈرک مجھے محل میں لے آیا اور مجھے منظور نظر
बना लिया। उसकी भी बादशाही का नामो निशान मिट गया और वो मारा गया। मैं आपके महल में नहीं रहूंगी, उसने जरा खामोश रहकर कहा। मैं आपसे एक बार फिर कहती हूँ कि इस सफर का ख्याल दिल से निकाल दें। वो चुप हो गई। सब खामोश थे, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। मरीना उठी और पुरवकार सी चाल चलती दरवाजे तक गई, रुकी और पीछे को मुड़ी। मुसलमानों के अमीर, उसने कहा, उंदलस बदरूहों का देश है। यहाँ इंसानों का खून बहता आया है और खून ही बहता रहेगा। यहाँ की जमीन में बड़े खौफनाक और पुरअसरार राज दफन है। यहाँ की फिजा में बेद पोशीदा है। और वो दरवाजे से निकल गई। मुझे इस लड़की के साथ दिली हमदर्दी है, मूसा बिन उसैर ने कहा। सफर की तैयारी जल्द मुकम्मल कर लो। उंदलस का दारुल हुकूमत तुलीता नहीं अशबेलिया होगा। 1-2 दिनों में हमें अशबेलिया को रवाना होना है। वो हादसा बड़ा काफिला था जो 2 दिनों बाद अशबेलिया की तरफ जा रहा था। मूसा का बेटा अब्दुल अजीज अशबेलिया में था। उससे पहले इतला दे दी गई थी कि मूसा और तारक आ रहे हैं। इस इतला पर अब्दुल अजीज की बीवी अजी लूना यकलख्त सरगर्म हो गई। अमीर का इस्तकबाल सारा शहर करेगा। अजी लूना ने अजीज से कहा, शहर की आबादी शहर से बाहर जाकर रास्ते के दोनों तरफ खड़ी होकर अमीर मूसा बिन उसैर का इस्तकबाल करेगी। नहीं अजी लूना, अब्दुल अजीज ने कहा, अमीर मूसा पसंद नहीं करेंगे। हमारा मजहब ऐसे शहाना अंदाज की इजाजत नहीं देता कि लोगों को रास्ते में खड़ा करके इस्तकबाल कराया जाए। इसे हम गरूर और तकब्बुर कहते हैं। ये फिरौनों का तरीका है। यहाँ के लोग मुसलमान नहीं। अजी लूना ने कहा, ये तुम्हें अमीर मूसा और सिपाही सलार तारक बिन ज़ियाद को बादशाह समझते हैं। ये लोग बादशाहों के आदी हैं। अगर तुमने इन्हें ये तासुर दिया कि तुम भी इन्हीं जैसे इंसान हो तो इन पर तुम्हारा रोब और दबदबा कायम नहीं होगा और ये बगावत पर उतर आएंगे। मैं तुम्हारे अजीम बाप की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि वो आम लोगों की तरह आएं और राया इनकी तरफ तवज्जो ही न दे। ये इंतजाम मैं करूंगी। तारीख नवेस लिखते हैं कि अजी लूना एक बड़ा ही हसीन सहर बनकर अब्दुल अजीज पर गालिब आ गई थी और अब्दुल अजीज जन मरीदों जैसी हरकतें करने लगा था। इसके साथ ही अब्दुल अजीज बड़ा ही काबिल और जबरदस्त सिपाही सलार और दानिशमंद मुंतजम था। अजी लूना मलका बनना चाहती थी। इसे पता चला कि मूसा बिन उसैर आ रहा है तो उसने सारे शहर में मुनादी करा दी कि अमीर मिस्र अफ्रीका और उंदलस कुछ दिनों बाद आ रहे हैं। शहरियों को जो ही बताया जाएगा कि वो आज पहुंच रहे हैं तो शहर के तमाम लोग, औरतें और बच्चे भी शहर के बाहर जाकर अमीर का इस्तकबाल करेंगे। अजी लूना मूसा के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हो गई। वो हाकिमों को हुक्म देती फिरती और अब्दुल अजीज अपने कामों में मसरूफ रहता था। अजी लूना मुसलमान तो थी नहीं कि मर्दों में ना जाती, वो ईसाई थी। लिबास मुसलमान औरतों जैसा पहनती थी। शहर के लोगों में वो पहले ही बहुत मकबूल थी। अशबेलिया को जब मुसलमानों ने मुहासरे में ले लिया था तो अजी लूना ने शहर के दिफा में बहुत काम किया था। तफसीलात पहले बयान हो चुकी हैं। 2 सवारों को तलीता की तरफ भेज दिया गया कि उन्हें शहर से चंद मील दूर मूसा का काफिला आता नजर आए तो घोड़े सर पर दौड़ाते वापस आकर इतला दें। मूसा बिन उसैर की आमद का दिन आ गया। दोपहर के वक्त दोनों सवार जो आगे गए हुए थे घोड़े सर पर दौड़ाते शहर में दाखिल हुए और अब्दुल अजीज के यहाँ गए। उन्होंने बताया कि अमीर अफ्रीका उंदलस आ रहे हैं। उन्होंने जो फासला बताया वो कमोबेश 1 घंटे की मुसाफत थी। अजी लूना को इतला मिली तो वो दौड़ी बाहर आई। उसने अस्तबल से घोड़ा मंगवाने की बजाय इन दोनों सवारों में से एक का घोड़ा लिया, कूद कर इस पर सवार हुई और घोड़ा दौड़ा दिया। उसने पहले इंतजाम करा रखा था कि किस किस को मिलना है और किसके जिम्मे क्या काम है। मूसा बिन उसैर का काफिला हादसा लंबा था। आगे मूसा, तारक बिन ज़ियाद और मगीसुर रूमी थे। इनके पीछे 200-250 घोड़सवारों का हिफाजती दस्ता था। इसके पीछे हजारों जंगी कैदी थे जिनके हाथ मजबूत रस्सियों से बंधे हुए थे। इन कैदियों में उंदलस की यानी शाह राडरक की फौज के आला और उनसे कम दर्जा अफसर भी थे। इन्हें ये सहूलत दी गई थी कि वो घोड़ों पर सवार थे। इनमें एक कैदी जो घोड़े पर सवार था सबसे ज्यादा अहम था। वो कुर्तबा का गवर्नर था जो मगीसुर रूमी का खास कैदी था।
इस काफिले में घोड़ा गाड़ियां भी थीं, इनमें कनेज़ें और लोडियां थीं, इनके पीछे हचरें और हचरों वाली गाड़ियां थीं। ये सब माले गनीमत से लदी हुई थीं। काफिला शहर से 1.5 मील के फासले तक पहुंचा तो रास्ते के दोनों तरफ शहरियों का हजूम खड़ा नजर आया। शहरियों के आगे मुसलमानों के लश्कर के मुजाहिदीन हाथों पर बर्छियां लिए खड़े थे। हर बर्छी की अन्नी के करीब सब्ज रंग की तकून जड़ी बंधी हुई थी। हर मुजाहिद की बर्छी का नीचे वाला सिरा जमीन पर और अन्नी आगे को थी। दूर तक झंडियां अजब बहार दिखा रही थीं। इसके साथ मुजाहिदीन का एक जैसा सफेद लिबास तो और ही ज्यादा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। जहां प्यादों की दोरोया कितारें खत्म हो जाती थीं, वहां से घोड़सवारों की कितारें शुरू होती थीं। प्यादों और सवारों के पीछे शहरी खड़े थे। औरतों और बच्चों को आगे खड़ा किया गया था। वो सब बाजू ऊपर करके हिला रहे थे और इसके साथ ही वो अपनी जुबान में अमीर मूसा बिन उसैर हुश अमदीद और मूसा बिन उसैर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नौजवान लड़कियों के पास फूलों से भरी हुई टोकरियां थीं। वो मूसा के रास्ते में आगे बढ़कर फूल बिखेर रही थीं। मूसा के होंठों पर कुछ और ही किस्म की मुस्कुराहट थी और उसकी गर्दन उखड़ी हुई थी। प्रोफेसर डोजी, डॉन पास्कल, इब्ने बशकवाल और डॉक्टर कोंदे ने चांद और तारीख दानों और उस वक्त की दस्तावेजात के हवाले से लिखा है कि मुसलमान फातहीन इस किस्म के शहाना जाहो जलाल और शानो शौकत के कायल नहीं थे। न इस्लाम उन्हें शहाना अंदाज और तरीके इख्तियार करने की इजाजत देता था। होना तो ये चाहिए था कि मूसा बिन नुसैर इस शहाना इस्तकबाल को नापसंद करता और पूछता कि इस बिदत का एहतमाम किसने किया है और इससे सरजनश करता, लेकिन उसने इस शहाना इस्तकबाल को पसंद किया। उसकी मुस्कुराहट और चेहरे का तासुर बताता था कि वो भूला नहीं समा रहा। अलबत्ता तारक बिन ज़ियाद, मगीसुर रूमी और दूसरे सालारों के चेहरों पर नापसंदीदगी के तासुरात थे। शहर के दरवाजे पर मूसा का जो इस्तकबाल हुआ उसकी तो शान ही निराली थी। शहर की सरकर्दा शख्सियतें, उदलसी भी मुसलमान भी एक सफ में खड़ी थी। मूसा, तारक, मगीस और दीगर सलार घोड़ों से उतरे। मुसलमान जमा ने तो इनसे सीधे खड़े रहकर मुसाफा किया, लेकिन उदलसी पहले रकू की तरह झुकते, फिर मूसा का एक हाथ दोनों में लेते और चूमते थे। तारक बिन ज़ियाद और बाकी तमाम सलारों से वो इस तरह मिलते थे जिस तरह आम आदमियों से रस्मी तौर पर मिला जाता है। मुख्तसर ये कि एजी लूना ने मूसा बिन नुसैर को उदलस के बादशाहों जैसा बादशाह बना दिया।